Okay, so on this session we are actually gonna discuss about the colors because earlier we had discussed about the interfaces and everything. कुछ कहना है तो 5 मिनट में आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ बोल दो. हाँ बन जाएगा. बन जाएगा. कैसा कलर चाहिए? हाँ किसका है? फॉर्म क्या है और नाम क्या है कंपनी? हम्म. बन जाएगा. यहाँ कोई है अभी? 3D आर्टिस्ट बैठा है इधर? तो बोल देना, नहीं तो मार्शी निकल गया है शायद. इमेज आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें. Okay, okay, yeah. That is on that one. We had to crack it once more. You haven't applied the credit, so I'll be doing other. Please ask Tushar to come over, so he might can crack the Coral Draw. So for this work, we are actually gonna create a square-shaped canvas and pages because all the other social networkings require for the square ones, right? So So generally, what we are going to do in all of our mostly of our classes will be much more, not all of the time we are going to focus on the social networking, but regarding that also it will be, will conduct that one. So CRL Coral 02, and I'm gonna be giving a square value. So which same size, right? For anything, either for the width or either for the height, I'm actually giving it about 1080 pixels by 1080 pixels because this can be scaled into any size. Either you can increase, it is not going to lose that much of quality, or because it's a vector, so definitely it will not lose any quality. But if you are going to put it over in any digital space, after scaling it will not lose that much of quality, so you won't be losing any of your graphic. So we'll give the resolution to 300, and orientation doesn't matter because this is a square one, so it won't be required anything. Okay, so now what we are going to do, we have a ruler already been selected. If we wanted to add the ruler, if it is not selected by default, you can actually click it from here. And if anything which you haven't seen um, in your Coral Draw, which you are actually gonna see in the video, if it is there and in your Coral Draw it is not available there, then you can actually bring it from this option. Yeah, just give me a second. Yeah. हेलो. यस सर. सर केवल एक जेपेग चाहिए क्या? 3D फाइल तो नहीं चाहिए होगी सर उनको वैसे. पैंतीस तो 3000 2,500 से 3,000 तक का है सर, रेंडरिंग पूरा देके. और अगर एनिमेशन चाहिए है तो 3500 4,000. क्या चीज़? प्रोग्राम 64 था ना? क्या चीज़ क्रैक करना था ना उसको? हाँ वो रिमूव हो जाता है ना. फिर उसको या रिप्लेस कर देंगे और सेव कर देंगे. देन फिर आप फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो पूछेगा नहीं. ये जनरली पकड़ लेता है, कोरल का DRM है, थोड़ा सा नेट वगैरह सेट रहता है तो पकड़ ही लेता है. ओके, सो
कोरल का अगर कोई ऐसे ऑप्शंस जो आपको नहीं मिले हैं और आपको यहाँ दिख रहे हैं, आपके में नहीं दिख रहे हैं, तो आप एक तो यहाँ से कोरल ड्रॉ का जो ऑप्शंस पैनल होता है, कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट होता है, यहाँ से आप ला सकते हैं उसको। ये पूरे इंटरफेस की सेटिंग है, जनरली कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट है। तो इंटरफेस की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जनरली कई बार होता है जैसे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा डार्क करना है, तो आप राइट कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है, अपर राइट कॉर्नर में डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है, इसमें जाके आप जनरल्स में और बैकग्राउंड्स में जाके राइट सॉलिड कलर कोई एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर वो अप्लाई होगा तो ये डॉक्यूमेंट का कलर चेंज हो जाएगा। राइट वैसे ही वी कैन चेंज एनीथिंग एटलीस्ट पूरा यहाँ पर एवरीथिंग इज राइट ओवर हियर, सो यू कैन यूज दैट वन। राइट बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी वाइट, कंप्लीट वाइट। तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें कई लोगों का बैकग्राउंड का इशू होता है, आंखों में जोर पड़ता है, सो उसके लिए चेंज कर सकते हैं। और अगर रिगार्डिंग द पैनल्स, इफ देयर इज नो पैनल, if there is any panel which is not over there, either the docker is not available, then windows is the option where we can actually select it. If you don't know that where is which docker is missing, then you can go for workspace and select the default one. Right, so that will be reset of the interface. Now for today's work we are actually going to explore about the color theory system. Right, we had already color theory system. Right, basically what is a color system, that is what we are going to discuss for today. So I'm selecting this text, and generally it's color system for this, but there are both of the spellings available. See, right, that is following the one, then you have to change the u also needs to be there, right? But American one has, so then software, yeah, right, follow that one, right? All right, so after a color system, we had already been known about this, that key in the premier primary color section for the real world, RYB was the original colors. But when we talk about digital medium, RGB is the one that is we go for. रीज़न ये था कि RYB होने का रीज़न ये था कि जब रियल वर्ल्ड में हम लोग आते हैं तो हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए या कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन कलर हमें कहीं से नहीं मिलता, प्योर ग्रीन कलर हमें हमेशा उसमें ऑरेंज टोन या येलोइश टोन ऐड वाला ग्रीन ही मिलता है, तो ट्रू कलर नहीं मिल पाता, लेकिन येलो का हमें ट्रू कलर मिल पाता है। इसके कारण से हम रियल वर्ल्ड में RYB को बेस बनाते हैं, उसमें सेकेंडरी कलर पे ग्रीन निकलता है। राइट, और कलर सिस्टम में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, क्योंकि लाइट्स के थ्रू हमारे कलर्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसके कारण से हम डायरेक्ट पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमें ग्रीन चाहिए। तो हमने RGB को बेस बनाया हुआ है, क्योंकि कलर स्पेक्ट्रम जो प्रिज्म के थ्रू निकलते हैं उसमें प्राइमरी हमें रेड ग्रीन ब्लू मिलते हैं। सो हाउ डू यू मिक्स ऑल दोज कलर्स एंड हाउ डू यू फाइंड दैट आपका कलर कौन सा मेजर कलर है? तो सबसे पहले कलर सिस्टम में हमने एक शेप बनाया हुआ है, इसके अंदर फिल पे जाएंगे, एंड फिल पे सबसे पहला यूनिफॉर्म फिल होता है विच इज़ द फ्लैट कलर, फ्लैट सॉलिड। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ योर RGB ह्यू, ये एक्चुअली ह्यू व्यू कहलाता है, राइट? और इसके अंदर आपको RGB ऑप्शन मिलते हैं, दैट पैनल कैन बी चेंज इनटू एनीथिंग। यहाँ पे आप उसको CMY भी कर सकते हैं एज अ प्राइमरी कलर, CMYK में भी चेंज कर सकते हैं RGB फॉर द कलर, और HSB यानी ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस के फॉर्म में भी आप वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अब ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस वी गोना डिस्कस अबाउट दिस इन लेटर। तो RGB को अगर हम देखें कि ये कितनी वैल्यू तक जाता है, तो ये जाता है 255 तक। अगर हम इसको 256 कर देंगे so it will automatically be turned into 255. ग्रीन को मैं 0 करता हूँ, ब्लू को 0 करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मेरा जो कलर है वो एग्जैक्टली शूट आउट टू दी राइट पोर्शन, राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर, और 255 के ऊपर नहीं जा रहा है। दैट मीन्स इट विल गिव मी अबाउट 0 to 255, दैट इज 256 शेड्स अवेलेबल फॉर द रेड कलर, राइट?
And now as you can see in the bottom of this section, you will see that there is a hexadecimal code available, which is being shown by hashtag FF0000. Now what is this? This is basically a hexadecimal value of your color. So whatever color you are picking right now can be copied into numbers. So if we let's just say if I am gonna change it into any other hue, right, it's getting changed. And if I can copy this, and let's just say if I get back to this random kind of color, and now I wanted to get back to the previous one, so I just have to type in that number over here, press enter, and I will be returned back to my original cell. Now so 255 shade is the true color of red. We'll drag it, shift drag, right, or it's shift right click, left click, right, more copies, and then tab, shift tab, delete. As you can see in red panel, if it is 255, then it will be complete green. Oops, shift right click, or if I turn it to 0 and give it 255, it will be blue. Numerically form we can add it. Then प्राइमरी का सेकेंडरी कलर ऑप्शन जो है, रेड और ग्रीन को मिक्स करना है, तो फिर विल हैव टू दोनों जगह 255 डालना होगा, एंड विल गेट अ प्योर फॉर्म ऑफ येलो. ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो विल गेट अ 255 ब्लू, सो हमें सियान मिल जाएगा. रेड और ब्लू को अगर हम मिक्स करते हैं तो विल गेट अ मैजेंटा, राइट. सो CMY के मिक्स हो जाते हैं. इससे ज़्यादा कलर मिक्स करने के लिए हमको फिर ये ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं, राइट. फिर उसके बाद हमें अलग टाइप के ऑप्शंस यानी सियान की वैल्यूज़ के साथ इसको यूज़ करना होगा, तो 2-3 वैल्यूज़ ऐड ऑन होते जाते हैं. जनरली इन कलर्स को नंबर वाइज सेव कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे RGB रख रहे हैं और हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इसमें देखेंगे कि FF वैल्यू जो होती है ये लास्ट वैल्यू होती है, डबल F, और शुरुआत जो होती है वो 0 से शुरुआत करेगा, 00 से शुरू करेगा, FF तक जाता है. तो राइट, शुरुआत होती है 00 से, फिर ये नंबर वैल्यू जो है वो 97 के बाद बदल जाती है और फिर FF करके अल्फ़ाबेट्स में आ जाता है, और FFF जो है वो एंडिंग तक होता है. तो अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम्स F डाल दूंगा, आई थिंक 6 टाइम्स F डाल दूंगा, तो आई विल बी गेटिंग अ वाइट वैल्यू, यानी सारे कलर्स जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल सेल्फ में मुझे मिल रहे हैं. सो दैट वाज आवर सिंपल थ्योरी ऑफ कलर मिक्सिंग, जो कि कोरल ड्रॉ हमें प्रोवाइड करता है. लेट्स गेट इट aside, and then how do you apply that these colors to make a color system. Now what is a color system? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे करते करते लास्ट में वो गोल घूम के वापस प्राइमरी में आ जाता है, क्योंकि सारे कलर्स जो हैं वो एट द एंड ये एक कलर व्हील की तरह ट्रीट किए जाते हैं. तो जहाँ से शुरू होते हैं वहीं आके ख़त्म हो जाते हैं. सो अगर हम बात करें कि हाउ डू वी यूज़ दैट इन अवर थ्योरीज, हम अपने काम के लिए उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो इस जगह पे एक टर्म आता है कलर सिस्टम. कलर सिस्टम का काम ये होता है कि ये एक्चुअल में एक पैकेज तैयार करता है, एक कॉम्बो तैयार करता है, जिसके यूज़ करके ही आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहला और सबसे आसान जो बेसिकली बोला जाए कि इफ़ आई डिपिक्ट कि व्हाट इज़ द कलर सिस्टम, इट्स काइंड ऑफ अ सोलर सिस्टम इन द यूनिवर्स. अब इसमें ये भी हो सकता है, सारी चीज़ आ जाती है. अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, देर आर 8 प्लैनेट्स नाउ, प्लूटो अलग कर दिया गया है, तो अब 8 प्लैनेट्स का हमारा सोलर सिस्टम है. ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे 12 या 16 सोलर सिस्टम हो 16 प्लैनेट्स का. कहीं ऐसा हो सकता है कि एक ही प्लैनेट हो, वही ऑर्बिट कर रहा हो सन के. तो ऐसे सोलर सिस्टम बनाए जा सकते हैं. सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी कलर थ्योरीज जो हैं वो भी ऐसे ही तैयार की जाती हैं. तो इसमें एक बेस बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कलर्स उसमें ऐड करते जाते हैं. अब बेस की बात करें तो कितने कलर्स एक्चुअली में होते हैं अवेलेबल, तो डिजिटल वर्ल्ड में आपको
मात्र 5 कलर ही मिलेंगे, जिसकी मदद से राइट एफ 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 एंड ब्लैक वाइट, राइट। इनको बोलते हैं कलर चैनल्स और इनको बोलेंगे अल्फा चैनल, राइट। तो कलर चैनल्स एंड अल्फा चैनल्स बेस रहेंगे जिनका यूज करके हम कलर सिस्टम तैयार करेंगे। अब जो पहला कलर सिस्टम आता है, जिसको जनरली लोगों ने 7 डिफरेंट टाइप्स के कलर सिस्टम्स में डाला हुआ है, क्योंकि हम है तो सोलर सिस्टम, अब हर चीज़ तो नहीं काउंट कर सकते, तो एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। इसमें जो सबसे पहला है वो है मोनोक्रोम, राइट। सो हम शुरुआत में मोनोक्रोम आर्टवर्क से शुरू करेंगे, जो कि बेसिकली आपका क्रोम स्टैंड्स फॉर योर की, यानी कि ब्लैक और वाइट कलर, एंड मोनो स्टैंड्स फॉर एनी कलर। तो कोई भी एक कलर हम लेके इसकी शुरुआत करेंगे। सो मैं यहाँ पे अगर कोई एक रैंडम कलर लूँ, लेट जस्ट से आई एम टेकिंग अ एक्वा कलर, और इसको मैं सेंटर से ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से लूँ, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये थ्योरी जो है वो उसकी कोई भी कलर यूज हो सकता है, ठीक। So what we are going to do, we are gonna use this color as a base and these will be adding the lights and shadows for the artwork. So इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक टूल यूज करेंगे which is a free hand tool. Let me just drag it so that I could get a good space for drawing. और इसके लिए I'll be taking a simple cube, राइट, और इसको हम कोई भी एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, आइदर इसी कलर का एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। सो आई टू पुट दैट दिस कलर ओवर हियर आई विल बी टेकिंग दिस, राइट। क्लिक करके एक और बार क्लिक कर देना है तो डायरेक्ट इट विल टेक द सिमिलर कलर ओवर हियर। दिस विल बी माय बेस। आई कुड लॉक दिस वन बिकॉज आई डू नॉट वांट टू हिंडर दिस ग्राफिक, राइट। सो आई विल जस्ट गिव इट अ लॉक कलर। देन स्टार्ट करने के लिए वी आर गोना यूज दिस फ्री हैंड टूल, क्योंकि ये पूरा ग्रुप जो है ये ड्राइंग ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो जितना भी ड्रॉ करना है वो सारा इधर से ही होगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना यूज अ फ्री हैंड वन। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा माउस के साथ और हमारा आई और ड्राइंग का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, राइट। सो इसके लिए व्हाट आई एम टेकिंग कि मैं ये पूरा कंप्लीट एरिया सेलेक्ट करता हूँ और मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। करेंटली आई एम जस्ट ऑन द एक्सटेम्पो, तो हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं। एक सीन ड्रॉ करेंगे बेसिकली फॉर मोनोक्रोम। अब यहाँ पे हमारे पास बेस कलर सिमिलरली सेम होगा, अभी इसमें डला नहीं है कोई एक बेस कलर। सो विल गिव इट अ फिल, सेलेक्ट, क्लिक एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्लिक दैट वन। उसमें भी दे दिए सेम एकदम एग्जैक्ट कलर का बेस कलर हमने दिया हुआ है। अब इसकी जो आउटलाइन है उसको राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन ऑफ कर देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट, हमें केवल आउटर में आउटलाइन चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक स्वाचेस के ऊपर में एक रेड कलर का वाइट कलर में नन कलर सेट है। इस पर जब कर्सर रखेंगे तो इट विल शो मी अ नो फिल साइन। तो जब आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दो चीज़ पूछता है, सेट आउटलाइन कलर और सेट फिल कलर। फिल बीच में जाएगा, आउटलाइन मतलब आउटर जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सेंटर पे कर लेते हैं, ठीक। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, अभी मैंने दोनों कलर डाल दिए तो ये दोनों सेम ऑप्शन थे, इसके कारण से इनका ब्लेंडिंग हो गया आपस में। अब मुझे इनमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है। कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है ब्लैक और वाइट का। अब यहाँ पे RGB तीनों मिलकर ही ब्लैक और वाइट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू में सारे अगर एक कलर आप मिक्स करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू इक्विवेलेंट मिक्स करेंगे तो ये वाइट वैल्यू देगा, रेड ग्रीन ब्लू इक्विवेलेंटली माइनस कर देंगे तो ये 0 कर देगा, तो राइट ब्लैक वैल्यू दे देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मैं उतना मैथमेटिक्स में तेज़ नहीं हूँ कि मैं इनमें कैलकुलेट करता बैठे रहूँ कि परफेक्ट 10% पे अगर मैंने बढ़ाया तो कैसे होगा। इस चीज़ के लिए कोरल के अंदर ही नहीं, सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक ऑप्शन होता है HSB का। HSB जो होता है, इसमें H जो होता है एक्चुअली वो तीनों कलर का मिक्सचर होता है, ह्यू,
सो ये हो गया हमारे पास ह्यू 160। ये केवल डिग्री वैल्यू एक्सेप्ट करता है क्योंकि हैंस इट्स अ कलर व्हील, तो डिग्री वैल्यू लेगा। तो ओरिजिनल कलर 166 पे सेव है। सैचुरेशन विल बी द सैचुरेशन यानी एक्सपोजर ऑफ द कलर कि कितना उसके अंदर डेंसिटी है कलर की। और तीसरा है ब्राइटनेस, दिस इज योर आइसोलेटेड ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू, अभी 56 पे तय है। नाउ अगर मैं आइसोलेशन 10 बढ़ाता हूँ तो यानी मैंने वाइट वैल्यू 10 ऐड की है इसके अंदर, इसको 66 राइट 66 करके विल एंटर एंड विल गेट अ ब्राइटर वन। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही 10 10 वैल्यू हॉप करेंगे टिल हम टिल वी रीच द नो मैंस लैंड, राइट। सो कलर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, तो उसका भी एक लिमिट है, जो लिमिट के बाद फिर आप यूज़ ना करें, विल सजेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन सजेस्ट करता है कि आप उससे आगे ना जाएं। सो आई बी टेकिंग सम ड्राइंग और कुछ रैंडम शेप्स आई एम एक्चुअली ड्राइंग ओवर देयर। एंड एवरीथिंग, सो कंट्रोल शिफ्ट दबा के हम मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम सेट आउटलाइन कलर, राइट। एक सेलेक्ट नहीं होता, ओके, probably I think all of those can be denoted over here, let me just see, yeah। वो एक्चुअली क्या है कि ये पॉइंट वाइट कलर का है, हाँ वो बता देता है कि सेलेक्टेड है, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सेट आउटलाइन मोड पे सेट करेंगे एंड इसका फिल कलर जो है एग्जैक्टली बेस कलर से पुट कर लेंगे एंड देन 66 था तो अब इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे 76, so it will give me another shade। Then I'll be adding some more designs, you can use any shape for a reference, either you can use um, any forest reference or either any reference that from where they can choose the shape। सिचुएशन ये है कि ये टूल काफ़ी स्मार्ट है, तो अगर हम कोई भी चीज़ आपस में जोड़ते हैं तो वो क्लोज कर लेता है, और आइदर उसमें स्मूथिंग ग्रुप ऑलरेडी ऑन है, तो इसके मतलब ये है कि अगर हमारा हाथ जैकेट भी होता है तो वो लाइन को स्मूथ कर देता है और आप बाद में भी उससे कभी भी ड्रॉ करके ज्वाइन करा सकते हैं एनीथिंग। Then we'll select all of these, right, and again हम इसको select करेंगे and we'll give it a brightest one, उसको एक fill दे देंगे। और ये वाला सेक्शन और ये वाले सेक्शन में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्लोज नहीं है, लेकिन इनमें fill अप्लाइड है, विजिबल नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, हम F10 शॉर्टकट लेंगे एंड विल जस्ट पुट द शेप एंड जॉइन देम, एग्जैक्टली उनको ज्वाइन कर देंगे जितने भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड विल गेट द शेप डन। Right, and this one is also
ओके, प्रोबेबली ये वाला सेलेक्टेड नहीं होगा, तो सिमिलरली सेलेक्ट, क्लिक, we'll do what, we'll select the bottom ones, again right click, we'll lock them up so that we'll get everything from the top, and then सबको सेलेक्ट करके आउटलाइन अलग कर देंगे, क्योंकि हमें आउटलाइन अभी नहीं चाहिए, अभी हम केवल शेड्स के साथ खेल रहे हैं। तो अब ये डार्कर वन जो है, सॉरी लाइटर वन है, और ये वाले जो हैं ये डार्कर वन है उससे ज़्यादा। तो हम 10 ऊपर जा रहे हैं, विल गो बाय 76। अभी ये वाला जो है वो, ये वाला हमारा 56 के ऊपर 66 था, ये 76 था, ये 86 होगा, करेक्ट। तो विल गिव दी 86 एज अ कलर। देन अब जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं, हमारा ग्राफिक जो है वो पास आते जाता है, तो ग्राफिक, क्योंकि हमारा व्यू जो है, जो हमारी आईज देखती हैं, अगर हमारी आईज में विनियट इफेक्ट नहीं होगा, विनियट इफेक्ट का मतलब है चारों तरफ डार्क नहीं होगा, तो हम आसानी से फोकस नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके आर्ट वर्क में भी रेंज जो है वो मोनोक्रोम में ऐसे ही डिसाइड होती है। जब आपका डिज़ाइन आपके कैमरा के पास आ जाए, इसका मतलब आपको डिज़ाइन डार्क करना है, और जब कैमरा से दूर चला जाए और ज़्यादा दूर चला जाए तो भी उसको डार्क करना है। तो बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड विल ऑलवेज बी डार्कर एंड द मिड ग्राउंड विल बी द एक्चुअल ग्राफिक इफ़ यू आर शोइंग द डेप्थ, अगर आप डेप्थ दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे बिकॉज आई एम ऑन 86 नाउ, सो आई विल बी टेकिंग सम व्यू, मैं इसको किसी एक सेपरेट व्यू पे चेंज कर देता हूँ। लेट्स जस्ट से कि I'll create some design over here, some design over here. I'll join everything. Currently we are not adding any chopping of the graphic, neither we are applying any union to the graphic, right? So सारा जितना भी whatever we are creating is basically creating on a closed path, right? सारा सारा हम उसी पे, राइट अभी केवल क्लोज टू, बिकॉज वी हैव टू डू अवर प्रैक्टिसेस ओवर इन दी माउस, तो आपका शेप डिज़ाइन करने का जो प्रैक्टिस है वो पूरा इसी में रह जाएगा, राइट। एंड आई विल बी क्रिएटिंग सम, probably I'll be giving it like this. hmm? right we right हम कॉपी करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके वही अब, राइट राइट राइट, वो एग्जैक्टली उसका अपोजिट डायरेक्शन कॉपी, हाँ विल हैव टू कॉपी इट एंड देन डू द मिरर, वो एक सिचुएशन हो गया होगा। Okay, so we have added some random shapes, or we are going to lock these earlier ones. Just lock them up and then select these. Now again we're gonna give the darkest value, so we're gonna select our color from here, we're gonna put it over in everyone, or either we can actually give any sort of color from here, and we can pick this one, right? And इसके बाद राइट इसलिए बाकी को क्लोज कर दिया था, इसलिए जितने मेरे पास ऑलरेडी थे वो सेलेक्ट हो गए।
एंड देन इनका जो आउटलाइन कलर है आई विल बी रिमूविंग दैट वन। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस वैल्यू है वो अभी 128 दिखा रहा है, विच इज़ दी कलर वैल्यू, सॉरी RGB की वैल्यू दिखा रहा है। RGB में 50% जो होता है वो 128 कहलाता है। तो हम इसको HSB में आ जाएंगे विच इज़ 56, तो इसको हम 46 कर देते हैं जो लीस्ट वैल्यू होगी। एक 10 माइनस कर देंगे तो विल गेट समथिंग लाइक दिस। इट्स प्रोबेबली ऑन टॉप। ओके, इट इज़ नॉट येट जॉइन, सो इसको ज्वाइन कर देंगे। और इसका कलर जो है वो हम exactly, या probably will pick it from here, outline color फिक्स कर देंगे, so we'll get something like a view। अब इस पूरे व्यू को हम कर देंगे लॉक। इट्स yeah, we'll lock this one again। now the previous one has to be taken care of। और अब क्योंकि अब हम क्या था 56 को बेस बना के हमने उस पर एड ऑन करते गए थे। अब इसके बाद कोई भी चीज़ यहाँ से यानी कि 86 के बाद क्यों नहीं आई। 86 के बाद हम 4 मात्र शेड ऊपर जा सकते थे, क्योंकि कलर सजेशन ये कहता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स का कि आपका जो सिलेक्शन है जो यहाँ पे आप HSB पे रखे हैं इसमें आप 90 से लेकर 100 तक की रेंज पे ना जाएं, क्योंकि इन कलर्स पे आपको ब्लेंडिंग नहीं मिलती है। यानी अगर उनके ऊपर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो नहीं होगा, ब्लेंड नहीं होगा। तो हम क्या वहाँ ड्रॉ ही नहीं करते। तो जनरली वो यहाँ की कोई वैल्यू होती है, इतनी कोई वैल्यू होगी जिसको हम मानते हैं कि हम उससे ऊपर नहीं जाते। और नीचे पे ये 10 से नीचे नहीं जाएगा। 10 से 10 to 90 आपको जितना राइट उसकी के पीछे बीच में आप अपना इक्वेशन तैयार करेंगे। अब यहाँ पे what I'm gonna do, I'm gonna take a separate graphic and I'll be joining this one। now as you can see 46 was the last one। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर मैं 46 का 36 करूँगा और इसको मैं सब ग्राफिक्स के पीछे भेज दूंगा। बस ये जो बैकग्राउंड है उसको छोड़ दूंगा, बिकॉज बैकग्राउंड के पीछे गया तो गायब हो गया। अब बैकग्राउंड के पीछे इसको भेजने के लिए मैं अगर कंट्रोल पेज डाउन करूं तो एज यू कैन सी आई एम गोइंग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। और कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन करूंगा तो वो एक बार में पीछे भेजता है लेयर के, पूरा पीछे भेजता है। और कंट्रोल के साथ केवल एक एक बार। और वैसे ही वाइस वर्सा है, आप कंट्रोल पेज अप दबाएंगे तो ये सामने आता जाएगा, जी ऑर्डरिंग में ऊपर जाता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं फॉर लाइक आउटसाइड ना जाए हमारे फ्रेम के। सो एक और बैकग्राउंड हो गया, राइट। देन आई एम गोना ऐड मोर डिज़ाइंस। राइट, एवरीथिंग हमारा ये जो बैकग्राउंड है विल एक्चुअली गिव इट अ लॉक। अगेन विल सेलेक्ट एवरीथिंग और राइट अब नाउ इट विल बी 26, राइट। एंड ये वाले जो हैं डेफिनेटली F10 एंड इनको ज्वाइन करके
सब वैल्यूज़ को हम फिक्स कर देंगे. विल पिक इट समथिंग लाइक दिस. सेलेक्ट एवरीथिंग एंड इसको हम outline. We'll give some details over here as well, जो as a leaf details आ सकती हैं. क्योंकि सिलुएट का फ़ायदा यही होता है कि कोई भी चीज़ आप उसमें ऐड कर दीजिए वो एक ज्योमेट्री लगने लगता है. जस्ट हैव टू सेलेक्ट द वैल्यूज़ एंड वी कैन सी कि वो हमारा और डिटेल्स फैक्ट आ जाएगा वहाँ पे. विल सेलेक्ट ऑल द ग्राफिक्स. राइट क्लिक करके कॉपी कर देते हैं. थोड़ा सा रोटेट कर देंगे जस्ट टू गिव सम रैंडम डिज़ाइंस. विल सेलेक्ट एवरीथिंग and control G as a group and then लास्ट वाले and then दबा के रखेंगे तो अपने आप पीछे जाता जाएगा. कंट्रोल एंड पेज डाउन को एक साथ दबा के रखे रहिए, होल्ड करके रखे रहेंगे तो धीरे 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 और पीछे चला जाएगा. नाउ 26 था, अब हम 10 के नीचे नहीं जा सकते तो अब हमारे पास 16 मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है. सो हम उसमें कुछ रैंडम मिस्ड ड्राइंग्स ऐड कर सकते हैं फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट. Select that and last value 26 थी तो we'll give it a 16 value. right click over it and इस पूरे को select करके group and इसको हम मिस्ट में पीछे डाल देंगे. तो हमारे पास एक और वैल्यू आ गई एंड द लास्ट इज लाइक 16 यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यू ऊपर जा सकते हैं. 10 वैल्यू 10 ही हो सकता है, एक वैल्यू लास्ट जो दी जा सकती है. तो हम उसमें बैकग्राउंड क्योंकि लिट है और बैकग्राउंड को भी डार्क होना चाहिए तो हम इसमें बिल्कुल लास्ट में एक डेंस कुछ ड्रॉ कर देंगे जिसमें बहुत कम वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी बैकग्राउंड की. ये ऑलमोस्ट पूरा एरिया कवर करता रहेगा. इससे क्या होगा, आप पूरा डिज़ाइन जो है वो आसानी से देख पाएंगे. सिंपल हमने इन कलर्स के शेप्स को सेलेक्ट कर लिया. कंट्रोल जी, सेलेक्ट द कलर और वैल्यू जो है वो 10 जाएगी. ऑलमोस्ट ब्लैक. ओके, वी विल सेलेक्ट दिस वन और इसको अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक अनग्रुप और टेम्पररी अनग्रुप होता है, वापस से रीग्रुप कर सकते हैं उसको. गिव इट समथिंग लाइक दिस और यहाँ पे रखेंगे. आउटलाइन कलर गायब. कंट्रोल पेज डाउन. राइट, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मिस्ट भी नज़र आ रहा है, डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है. और अगर मैं अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके कंप्लीट ब्लैक या कुछ ऐसा भी दे दूँ तो दैट इज़ ऑल्सो विजिबल.
तो हमें पूरा पूरा डिज़ाइन नज़र आएगा। आप चाहें तो हम इसके ऊपर में ये वाला जो कलर हम देख रहे हैं, ये कलर हम यहाँ पे एज अ सर्कल स्फेयर, या प्रोबेबली आई विल बी एडिंग दिस वन जो कि ओरिजिनल उससे आया था। हाँ, अब क्योंकि अब हम इसको बस इसके पीछे, ताकि हमें ये वाला सेक्शन गायब ना मिले। अगर हम उसको ब्लैक भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट ये वाले में हमें पूरी रेंज मिल रही है। अब ये जो सेक्शन है इसमें ये मोनोक्रोम कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कि मोनोक्रोम में हमने एक कलर लिया और उसमें ब्लैक कलर और वाइट करके पूरे कंप्लीट शेड यूज़ किए। अब अगर इसके अंदर एक वैल्यू होती है जो छूट जाती है, वो होती है हाईलाइट वैल्यू। हाईलाइट और ब्लैक पॉइंट। ब्लैक पॉइंट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेडो होती है सीन में, उसको बोलते हैं ब्लैक पॉइंट। वो मोनोक्रोम से नहीं बन पाती क्योंकि उसमें कलर मिक्स हो रहा होता है। आप एक्सट्रीम वाइट और एक्सट्रीम ब्लैक यूज़ करके उन हाईलाइट्स पॉइंट्स को बना सकते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने इन सबको शायद लॉक कर दिया है, तो नाउ नो, वी हैवंट लॉक्ड देम, हमने सबको ग्रुप ज़रूर कर दिया। Probably lock, yeah, now I can not move them। वो अर्लियर मैंने उनको ग्रुप कर दिया था लेकिन वो नहीं किया था, तो उनमें से कुछ छूट भी गए थे। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सेलेक्ट, और कुछ ड्राइंग्स मैं क्रिएट करूँगा जो कि हाईलाइट पोर्शन पे काम करेंगी। एंड इसके लिए बस वही है कि मुझे एक लाइट सोर्स डिसाइड करना होता है कि लेफ़्ट से लाइट आ रही है कि राइट से, शेडो के लिए। एंड probably we're gonna do some designs जो कि random effect generate कर सकते हैं, right? So we'll take these ones और we'll select all of them, we'll give it a extreme white color, right? या 90s का 1995 का कोई एक कलर दे सकते हैं, fill RGB hue और HSB, और इसको हम 95 वैल्यू दे देते हैं। तो सबकी वैल्यू 95 होगी, हार्डली कुछ चेंज नज़र आता है, बट दे कुड ऑलमोस्ट गिव यू दी वैल्यू ऑफ अ हाईलाइट, तो वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। प्रोबेबली कहीं कोई अगर छोटा होगा, सो दैट कुड बी ओके, राइट। सो दैट इज़ अवर मोनोक्रोम, जो हमारी बेसिक कलर थ्योरीज में यूज़ होता है। सबसे पहला सिंपल ब्राइटर शेड है। सो ये सबसे पहला पॉइंट होता है। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, तो फिर ये आर्ट वर्क चेंज होके पोस्टर आर्ट वर्क हो जाएगा, फिर कोई दूसरा आर्ट वर्क हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस के लिए आपको इसको ट्राई करना है। ओके, तो आज हमने एक टूल और देखा है, फ्री हैंड टूल भी यूज़ किया हुआ है, तो उसको भी यूज़ करके देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका माउस के साथ और आई का कोऑर्डिनेट जो है, हैंड और आई का कोऑर्डिनेट, वो बैठ जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।